नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर दिल्ली। ओम सचिन जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें, अवश्य शेयर करें। मैं मिस्टर जेडी शर्मा है, वाइस प्रेसिडेंट आईवे पार्क के हैं। इन्होंने एक मेरे पास डिटेल भेजी थी सुबह ही, तो एक तो वो मैं आपको बता दूं बस। IBA is circulating a misleading note on improvement in family pension with 11th bipartite settlement. By response to the propaganda of AIBA, banks make adequate provision to ensure the payment of pension, that is 50% of average of basic pay drawn during the past 10 months of service. Such a provision is made to full pension up to age of 82 years. It is hardly 5% of the pensioners who survive beyond 82 years. 95% of the pensioners die before attaining the age of 82%. Family pension of the spouse of deceased pensioner is calculated at 50% of the basic pay instead of regular pension, that is 50%, would result in the reduction in the pension to the extent of 35% of the last drawn pay, reduction from 50% to 15%, 50% to 15%. Thus, every deceased pensioner on his death before 82 years left a surplus of 35% of last drawn pay in the pension fund. 35% एक्स्ट्रा छोड़ के जाता है अपना last drawn pay in the pension fund surplus. Under such circumstances, improving family pension from 15% to 30% still left a surplus of 20% of last drawn pay in the pension fund. Such a surplus left by 95% of the deceased pensioners below 82 years would be many times more than the funds required to meet the cost of the improvement for those 5% family pensioners who survive beyond 82 years of age. Where is the additional cost of improvement in the family pension at the 30% in old family pension at a rate lesser to 50% of last drawn basic pay resulted in a negative provisioning to the pension fund. IBA, UFBU and AIBA needed to engage bankers with the knowledge of the provisioning and not actuarial scientists to determine the implication of the family pension improvement at thus get hoodwinked by the IBA. Salary revision cost is for rupees 8,500 employees and officers at the rate of 15% of the pay slip cost comes to 7,898 crores. How for just about 70,000 family pensioners an increase of 15% of the last pay drawn pay would work out to be huge sum of 18,563 crores. 18,563 जो फैमिली पेंशन का खर्चा दिखाया वो गलत दिखाया, इन्होंने ये बताया। और ये मतलब 8,50,000 पेंशन सैलरी का रिवीजन तो 15% पे हुआ है, 7,898 करोड़ रुपए। इज इट नॉट cynical? There is need to put the arithmetic right. The total annual pension bill for more than 4 lakh pensioners and family pensioners during 11th BPS was 14,000 crores. 14,000 crores. The cost calculated for improvement in family pension rupees 18,563 crores would have been more than adequate to double the pension of all the 4 lakh pensioners including the family pensioners. देखो 14,000 करोड़ कुल ही खर्चा आता है, कितना फालतू बता रहे हैं पूरी सैलरी देने का। ये तो इम्प्रूवमेंट में इतना बता दिया इन्होंने। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AIBA UFBU इज ए मिसप्लेस्ड एज द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फैमिली पेंशन। जेडी शर्मा वाइस प्रेसिडेंट आईवा पार्क। एक तो ये इन्होंने भेजा है और एक इन्होंने ये भी भेजा है मुझे। देखो एक इन्होंने पम्फलेट टाइप का भेजा है, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने वो किया है, IBA ने और AIBA ने और UFBU ने जो प्रोपेगेंडा चला है इसके खिलाफ। इज इट ट्रू दैट UFBU एंड AIBA डू नॉट केयर फॉर रिटायरीज इन 11th BPS 2020? UFBU achieved improvement in family pension
with uniform rate of 30% without any ceiling. Don't they know the cost? It was ₹8,563 crore इन्होंने बताया. 11th BPS wage revision for working employees एंड ऑफिसर्स इज 7,890 करोड़. वो तो 15% में 7,898 करोड़ उन्हें मिल रहा है, खर्च हुआ है उनके ऊपर 8,50,000 के, और वो 1,60,000 के करीब फैमिली पेंशन है, उन्हें इतना बता रहे हैं. वो बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, गलत. देन व्हाई सम रिटायर्ड एसोसिएशन एंड लीडर्स स्प्रेड सच falsehood? आर दे इग्नोरेंट और आर दे डेलिब्रेट? तो इन्होंने पूरी डिटेल दी है कि किस किस तरह से उन्होंने झूठ बोल के बैंक वाइज इन्होंने 12 बैंकों का दिया स्टेट बैंक से, और एक का फिगर दे करके और 18,563.19 करोड़ 12 PSBs का दिया, जो कि गलत है. ये इन्होंने बताना चाहा, और बिल्कुल ये इनकी बात जस्टिफाइड है और नज़र आ रही है सारी. तो ये है, हम बाकी पेंशन अपडेशन के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं, पेंशन एक्टिविस्ट. इसी संबंध में हमने भारतीय मजदूर संघ में भी गए थे और वहाँ मीटिंगें करी कई सारी. मनमोहन दास जी NOW के जो जनरल सेक्रेटरी उनसे, और उन्होंने बहुत खरी खोटी भी सुनाई, और उन्होंने बहुत कहा कि हमारे हितों को बेच दिया वगैरह वगैरह. 2.5 घंटे की मीटिंग थी. ये देखो इनके फोटो हैं. तो उनसे तो बहुत ही ज़्यादा हमने कहा, और आज हमने IBOC के जनरल सेक्रेटरी से भी बड़ी टफ बात करी और काफ़ी डिटेल करी, और उन्होंने खैर बहुत अच्छी बात की. उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही वेंकटचलम और बंदलिस ने जैसे हमें कहा कि ये है, और मतलब जो है तुम मेंबर नहीं हो हमारे और इतना पैसा लगेगा वगैरह वगैरह, कुछ ऐसी बात नहीं की. तो ये ही चीज़ थी आज के संदर्भ में जो मैंने आपको बताई है. और शेष ये है कि जल्दी ही धरना प्रदर्शन के प्रोग्राम आएंगे 20 जनवरी के बाद. 21 जनवरी को इन्होंने AIBRWA ने दी है कॉल, और AIBRAF और भी AIBRF और IBAPAR के भी फरवरी के फर्स्ट वीक तक सभी लोग धरने प्रदर्शन करेंगे. तो सभी लोग उनमें एक्टिव हो जाएं और रहें. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. जो कोई सांस की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी, हार्ट की बीमारी है, BP, तो वो थोड़ा देख परख के आए, गाड़ी वाड़ी से आए, इंतजाम करके आए कपड़ों का, और हॉट वाटर बोतल वगैरह लेके आए, ताकि क्योंकि सर्दी रहेगी उस पीरियड में. और बाकी लोग जो हैं ठीक ठाक तरीके से आए, मतांतर से ऊपर उठ करके, चाहे किसी भी यूनियन के हों और कोई भी यूनियन लगे, बैंक के रिटायरी कोज के ऊपर अगर लग रही है तो धरने में सभी शामिल हो पूरी तरह से मजबूती से और मन से, दिल से. और अगर किसी को दिक्कत है तो कम देर रुके वहाँ. 11 से 3 बजे तक का धरना होगा, और बाकी लोगों के भी जो प्रोग्राम आएंगे वो आपको बताए जाएंगे. ये भी बताएंगे अपना जो यूनियंस और संगठन लगाएंगे, और हम भी बताएंगे. लेकिन अभी आज IBOC के जनरल सेक्रेटरी का भी ये कहना था कि भाई प्रदर्शन आप लोग सारी यूनियनें मिल कर करो, और बड़े प्रदर्शन करो वास्ट लेवल के. और हमारी दिक्कत ये है कि आधे तो हमारे AIBRF में हैं और आधे हैं IBAPAR से एफिलेटेड हैं, और बाकी छोटे छोटे संगठन हैं 5-10% उनके पास होंगे, वो भी उनके भी तो संगठन के ही हैं. तो 7,60,70,000 हमारे जितने भी हैं, 7.25 लाख पेंशनर, वो सारे एकजुट नहीं होते. अगर एकजुट हो जाए ना तो गवर्नमेंट भी हिले और IBA DFS भी हिले. और यही आज मेरी यूनियन के नेताओं से बात हुई है. एक जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ की यूनियन है, उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि भाई लगाओ, तभी तो कुछ होगा. माँ भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है. अब हम रोएंगे नहीं, घरों में बैठे रहेंगे. अभी इन्होंने पोस्टर मैंने कहा था, इन्होंने निकाला है कि बाहर निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से. पोस्टर में उन्होंने लिखा IBRWA में, सही लिखा है उन्होंने. लेकिन ये है ना, अच्छा गिरीश आर्य जी को हम इन्होंने IBRWA वालों ने अपने धरने में चीफ गेस्ट के लिए लिखा है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं BMS के, और उनसे उनका कोऑर्डिनेशन है. हमारा तो है ही, हम तो उनके साथ मीटिंग सब कर ही चुके, तो वो भी शायद आएंगे. और देखो, लेकिन ये है कि धरने प्रदर्शन के प्रोग्राम सफल होने चाहिए, और कुछ भी नहीं कर सकते. हाँ, अभी मार्च में सिंगला वाला केस आएगा और अगस्त में हमारा केस है, वो तो उन्होंने लेट कर दिया, एकदम 8 महीने लेट कर दिया. अर्ली सुनवाई के लिए हम हालांकि डिमांड करेंगे. तो उसमें क्या होता है ये आगे पता लगेगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकते कोर्ट में किस तरह से मूवमेंट होगी, क्या होगी. लेकिन हाँ, सिंगला वाले केस में भी हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे लगता है कि हमारी जीत हो सकती है, हम उम्मीद करते हैं. बाकी
वो तो एक अलग इशू है, क्या होगा कोर्ट में, कितने टाइम में होगा, कहाँ तक जाएंगी, बाद में कितना आगे बढ़ जाए, पहले से ही कई कई साल 5-5 10-10 साल हम लटक रहे हैं। लेकिन धरना प्रदर्शन का ये समय है भैया, गवर्नमेंट को फोर्स करो, इलेक्शन का टाइम है। मैं पहले से ही कहता हूँ, हमारे जो 7.25 लाख पेंशनर्स हैं, और स्पेशल अलाउंस का मुद्दा तो ऐसा है, इन्होंने कहा भी स्पेशल अलाउंस वाले हो, सारों को फर्क कर डालता है। जो हमारे 7.5 लाख जो एम्प्लॉइज नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी फर्क डालता है। तो वो सब लोग भी आए तो 15 लाख लोग रहते हैं बैठते हैं हमारे, और हमारे स्पाउस भी 10-12 लाख होंगे और बच्चे भी होंगे। तो सभी लोग धीरे, सबको इफेक्ट करती हैं चीज़ें। अगर लोग प्रदर्शन करें 7 मेट्रो सिटीज में बहुत फर्क पड़ता है। बाकी प्रदर्शन तो होने ही, प्रोटेस्ट रैली तो होनी ही अगले महीने से, इसके अगेंस्ट भी होनी है। और पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंस और हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का ये मुख्य इशू है। बाकी कॉम्पिटिशन और ग्रेजुएटी के भी इशू हैं हमारे। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और मेरे जितने भी मेंबर्स अपने यूट्यूब पे हैं या मेरे ग्रुप्स में बहुत सारे मेंबर हैं। हालांकि मैं फेसबुक और सभी ग्रुप्स को अगर लगाऊं तो 3-4 लाख लोगों अपना एम्प्लॉइज से मेरी, सॉरी रिटायरीज से मेरी रीच बैठती है। कितने मेरे मेंबर, जिन ग्रुपों में मैं हूँ, मेरे अपने जो व्यक्तिगत मेरे ग्रुप हैं जिनमें मैं एडमिन हूँ, वो तो इतने नहीं है। उसमें तो मतलब ये यूट्यूब और ये लगा के 3-4-5 हज़ार ही बैठते होंगे, 3-4 हज़ार बैठते होंगे। लेकिन जो जिनमें मैं ग्रुपों में हूँ फेसबुक वगैरह पे, वो तो 3-4 लाख लोग बैठते हैं उसमें जा कर के। तो मेरी जो मैं लिखता हूँ या इसमें सर्कुलेट करता हूँ ग्रुप्स में, तो वो काफ़ी दूर तक जाते हैं। पर यह है कि अगर उन पर विचार किया जाए मुद्दों पे। धन्यवाद साथियों, नमन, क्रांतिकारी अभिवादन और सल्यूट सभी रिटायरी साथियों को, रिटायरी लीडर्स को और बैंक पेंशनर एक्टिविस्टों को। सभी लोग संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, सभी सपरिवार मंगलमय रहें। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन समाज संस्कृति, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम नमः शिवाय, जय हो। आर के त्यागी का जवाब। थैंक्स सर।